Let's get you some political updates. With the COVID surge in COVID-19 cases, Congress has decided to cancel all its public rallies and marathons in the state of Uttar Pradesh. The state is likely to go to polls in the next 2 months. On Tuesday, remember, a stampede-like situation developed during a marathon organized by a Congress leader in Uttar Pradesh's Bareilly district, and the marathon was organized as part of Congress election campaign where hundreds of women and children participated. Now that the Congress party has taken the lead in order to stop super spreader events like rallies and marathons, will others join and follow suit is the biggest question. In fact, let me go across to our correspondent Amir Haq, who is joining us with more details on this. So Amir, what really triggered this move by the Congress? Well, clearly the kind of stampede and awkward situation that emerged in Bareilly marathon that was organized by the Congress leaders there must have actually prompted the Congress party to take this decision. As per our sources within the Congress party, the National General Secretary of the Congress party and UP in charge of elections, Priyanka Gandhi Vadra, was quite unhappy and cross with the leaders in the manner in which this unfortunate incident played out at Bareilly yesterday. And in fact, several of these leaders were also pulled up for the kind of reactions that they gave to the media immediately after about a dozen girls were hurt in the stampede that occurred in Bareilly marathon yesterday. And also the kind of awareness that has emerged over the last few days relating to the massive spread of COVID that has been witnessed across the country, especially in Maharashtra and Delhi. And now there are cases that are emerging in UP as well. And therefore, about 7 to 8 marathon yatras that were planned for the Congress party's campaign ahead of the 2022 elections have been officially postponed. And in fact, in a letter that has been issued by the Congress party, by the UP Congress committee, has clarified that the Congress party is taking the lead as far as postponing these massive congregations because of the threat imposed by the COVID-19 new variant. And that it has also urged the government and local authorities to see to it that campaigns by other private political parties also do not result in surge of COVID-19 cases. Also, there are precautions that are mentioned in this letter issued by the UPCC, wherein COVID warriors, the frontline workers, and those involved in conducting the coming assembly elections are also fully vaccinated, and they follow the due protocol of COVID-19. So clearly, although Congress party had taken a lot of flack because of the manner in which these marathons had been conducted, with scant regard to COVID-19 norms, and also there was no protocol that was adhered to over there. But now at least the Congress party seems to be taking lead as far as cancelling or postponing their rallies or campaign communications. Definitely other rival political parties, including BJP, which is being repeatedly accused by its political rivals of conducting massive rallies that are being addressed by not just the Prime Minister, the UP Chief Minister, but also senior ministers from the Central Cabinet as well as other important leaders of the ruling party. They have had seen huge congregations across all poll-bound states. And this is something that actually needs to be curbed in view of the massive surge in COVID-19 cases that has been witnessed countrywide. Right, Aman, thank you so much for getting us all those details. In fact, now I'm being joined by Ali Agha of Congress. Thank you so much for taking the time out and speaking to us. First of all, help us understand the decision that has been taken by Congress. Was it the real reason behind this decision? Was the embarrassment that the party faced because of Bareilly stampede, or the real reason is COVID concerns? एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम जनता की सोची है और आम जनता की लड़ाई लड़ी है। आज जब कोविड का खतरा देश में बढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आम जन हित में अपनी रैलीज कैंसिल कर रही है, और जितनी मैराथन प्रियंका जी ने वो रैलीज कैंसिल की हैं। तो कांग्रेस पार्टी चूंकि हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती आई और जनता के लिए काम करती है, इसलिए ये फैसला लिया गया है और ये जनहित में लिया गया है। अली आगा जी, एक बात आपसे समझना चाहूंगी, आप ही के पार्टी के एक नेता हैं DK
शिव कुमार जो कि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है, उसके ऊपर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगी। उन्होंने ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कर्नाटका में जो उनकी रैली है, पदयात्रा है, वो निकालते रहेंगे। और उन्होंने इस बात को भी बोला है कि जब प्रधानमंत्री को इस बात की छूट है कि वो रैली कर सकें, बाकी पार्टियों को, गवर्नमेंट्स को पूरी छूट है अपने इवेंट्स कराने की, तो हमारे ऊपर पाबंदी क्यों? और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पार्टी का कुछ अलग ही रुख है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन जो कि पार्टी लेवल पर अगर प्रियंका जी या पार्टी ने जो फैसला लिया है, हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसको मानेंगे और उस पर चलेंगे। अब ये उन्होंने किस आधार पर ये फैसला लिया है, ये वही बता सकते हैं, उस पर मैं क्या यहाँ पर कमेंट करूं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने फैसला लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। अगर आज जनता को परेशानी हो रही है तो हम रैलीज या किसी भी तरह की मैराथन नहीं करेंगे, ये बेहतर रहेगा। अली आगा जी, एक और बड़ी बात है जो कि कांग्रेस की तरफ से आई है, वो ये है कि एक इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है, जहां पर आपकी पार्टी ने ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी तरह की बड़ी रैलीज हैं, उन सब पर अभी के लिए बैन लगा दिया जाए। ये फैसला आखिर क्यों लिया गया है? ये मांग क्यों उठाई गई है? बिल्कुल होना चाहिए, ये फैसला होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा था कि पिछली बार जो कोविड में हालात बने थे और जिस तरह से मौतें हुई थी, क्या हम अभी भी सबक नहीं लेंगे? तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस चीज का ध्यान किया और इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी की जो मांग है वो बिल्कुल सही है कि सारी रैलीज कैंसिल होना चाहिए और जितने भी जहां पर भी लोग इकट्ठा हो सकते हो, बड़े प्रोग्राम सारे रद्द होना चाहिए और किसी तरह की परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज इंसानी जान पहले नंबर पर है, दूसरी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स किस लिए हम करते हैं? जनता की सेवा के लिए। अगर वही जनता मरे और जिस तरह से नदी में बही और जानवरों ने मतलब जिस तरह से बेहुरमती उन लाशों की, क्या ये पसंद करेगी? तो कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है उसको सबको मानना चाहिए और सरकार को इस पर खुद ये अमल करना चाहिए, न कि अपनी राजनीति साधने के लिए भीड़ जमा करें और रैलियां करें। पर अली आगा जी, इन सभी नहीं करेगी तो अपना मतलब साधना, उसको तो जनता को बेवकूफ बनाना है, उसको इसकी फिक्र नहीं है। वो इस चीज से नहीं, उन्होंने ना कुछ किया। लास्ट ईयर भी जब कोविड हुआ था, किस तरह से मजदूर पैदल चल रहे थे, प्रियंका जी ने 100 बसें भेजी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या पार्टी ने कहीं कोई काम नहीं किया था। चाहे वो गैस का मामला हो, ऑक्सीजन हो, हजारों हजार लाखों लोगों को ऑक्सीजन कांग्रेस पार्टी ने दी थी, लेकिन ये बीजेपी या सरकार कहीं पर नहीं थी। मगर मुझे एक बात बताइए अली आगा जी, आपकी बात समझ गई कि कांग्रेस, आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत काम किया था दूसरी लहर में, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीजों को आप अभी याद दिला रहे हैं, कोविड के बढ़ते खतरे, कोविड के बढ़ते केसेस, हॉस्पिटलाइजेशन का डर, हेल्थ इंफ्रा पर क्या असर पड़ सकता है, ये सभी चीजें आपको आज जाकर याद आई हैं। 3 हफ्ते लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे कोविड के केसेस लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं, तब इस बात की याद नहीं आई थी? उतने हालात खराब नहीं थे, अब हालात खराब हो रहे हैं और भीषण स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए फैसला लिया गया है। हालात को देखते फैसला लिया गया। जरूरी नहीं है कि अगर जब लिया जाए, जब उठे जब सवेरा, वो वाली बात है। अगर आज हालात खराब हैं तो जो फैसला लिया गया वो सही लिया गया है। ये हालात क्या बरेली में हुई भगदड़ के बाद ज्यादा बिगड़ गए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिर्फ ये देखना है कि अगर रैलीज से आज नुकसान हो सकता है, कल को यही भारतीय जनता पार्टी होगा, मीडिया होगा, कांग्रेस को ब्लेम करेगा कि कांग्रेस की पार्टी, अगर जहां पर रैली होगी, अगर वहां पर कोई बात हो गई तो फिर पूरा मीडिया चिल्लाने लगेगा कि देखिए राजनीति के चक्कर में जनता को। तो इसलिए कांग्रेस ने हमेशा जनता की सोची है और जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। राजनीति हमारी जनता की एक, मेरे पास समय कम है अली आगा जी, एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगी। अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? यूपी में इलेक्शंस तो होके रहेंगे, भले ही आप कैंपेनिंग करें या फिर ना करें, क्या वर्चुअल रैलीज की तैयारी है अभी? करेंगे, हम सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन करेंगे और जनता हमारी बात सुनेगी और जनता हमको हमारी तरफ देख रही, जनता के दिलों में हम जगह बना रहे हैं। इसी डर से हम हमारे ऊपर सारे हमले हो रहे हैं कांग्रेस के ऊपर आज की डेट में, सारी पार्टियां। जी अली आगा जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।